میں خبر یہ ہے کہ سردی، اسموگ اور دھند کی وجہ سے اسکول کی چھٹیاں بڑھانے کا امکان ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا مزید ایک ہفتے تک چھٹیاں بڑھانے پر غور ہے۔ محکمہ موسمیات سے اگلے 20 دن کی رپورٹ مانگ لی ہے۔ موجودہ شیڈول کے مطابق چھٹیاں 1 جنوری تک ہیں۔ سردی، اسموگ اور دھند کی وجہ سے اسکولوں کی چھٹیاں بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا مزید ایک ہفتے تک چھٹیاں بڑھانے پر غور۔ محکمہ موسمیات سے اگلے 20 دن کی رپورٹ مانگ لی گئی ہے۔ موجودہ شیڈول کے مطابق چھٹیاں 1 جنوری تک ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے۔ سردی، اسموگ اور دھند کی وجہ سے اسکولوں کی چھٹیاں بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا مزید ایک ہفتے تک چھٹیاں بڑھانے پر غور۔ محکمہ موسمیات سے اگلے 20 دن کی رپورٹ مانگ لی گئی ہے۔ موجودہ شیڈول کے مطابق چھٹیاں 1 جنوری تک ہیں۔ تو اس متعلق محکمہ موسمیات سے اگلے 20 دن کی رپورٹ بھی مانگ لی ہے، جبکہ موجودہ شیڈول کے مطابق چھٹیاں 1 جنوری تک ہیں۔ سردی، اسموگ اور دھند کی وجہ سے اسکول کی چھٹیاں بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا مزید ایک ہفتے تک چھٹیاں بڑھانے پر غور ہے۔ محکمہ موسمیات سے اگلے 20 دن کی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے، جبکہ موجودہ شیڈول کی بات کی جائے تو موجودہ شیڈول کے مطابق چھٹیاں 1 جنوری تک ہیں۔ سردی، اسموگ اور دھند کی وجہ سے اسکول کی چھٹیاں بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا مزید ایک ہفتے تک چھٹیاں بڑھانے پر غور ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر دھند کا راج، حد نگاہ 50 میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ پائلٹس کو لینڈنگ ٹیک آف سے پہلے ATC سے اجازت لینے کی ہدایت۔ رن وے کو ہر قسم کی فلائٹ آپریشن کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ متعدد پروازوں کی آمد و رفت متاثر، کئی پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے راہیل علی سے۔ بتائیے راہیل۔ لاہور ایئرپورٹ پر دھند کے بعد متعدد پروازیں جو ہیں متاثر ہوئی ہیں۔ پائلٹس کو لینڈنگ ٹیک آف سے پہلے ATC کی اجازت لینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ رن وے کو جو ہے وہ کسی قسم کی فلائٹ میں جو ہے وہ بند کیا گیا۔ متعدد پروازوں کی آمد و رفت سے جو ہے وہ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شارجہ جانے والی پرواز PK 185 کو منسوخ کر دیا گیا۔ لاہور سے کوالالمپور جانے والی PIA کی پرواز PK 198 جو ہے وہ منسوخ ہونے کی وجہ سے آنے والی AirBlue کی پرواز PA471 کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس طرح دیگر فلائٹ جو ہے وہ منسوخ ہونے اور تاخیر کی وجہ سے جو ہے وہ مسافروں کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہے۔ میٹ آفس کا کہنا یہ ہے کہ موسم کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور جو حد نگاہ ہے وہ بھی بہتری آ رہی ہے، تو فلائٹ آپریشن جو ہے وہ جلد معمول کے مطابق جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے راہیل، بہت شکریہ آپ کا۔ میدانی علاقوں میں دھند، ٹرینوں کا شیڈول متاثر۔ کراچی اور کوئٹہ سمیت دیگر شہروں سے لاہور آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد، بتائیے گا۔ جی بالکل، میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث ٹرینوں کا پہلے سے متاثرہ شیڈول اب مزید متاثر ہو گیا ہے۔ کراچی اور کوئٹہ سمیت دیگر شہروں سے لاہور آنے اور لاہور سے جانے والی تمام ٹرینیں آج گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں۔ آج کراچی سے آنے والی کراچی ایکسپریس 8 گھنٹے 40 منٹ کی غیر معمولی تاخیر کا شکار ہے۔ اسی طرح ملت ایکسپریس 6 گھنٹے 40 منٹ، خیبر میل ایکسپریس جو ہے وہ 4 گھنٹے 50 منٹ اور پاک بزنس ایکسپریس 4 گھنٹے 45 منٹ لیٹ ہے۔ رحمان بابا ایکسپریس 4 گھنٹے 25 منٹ، کراکرم ایکسپریس 3 گھنٹے 40 منٹ، تیز گام ایکسپریس 3 گھنٹے 35 منٹ اور پاکستان ایکسپریس 3 گھنٹے 10 منٹ کی تاخیر سے آ رہی ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال ایکسپریس 2 گھنٹے 40 منٹ، فرید ایکسپریس 2 گھنٹے 30 منٹ، عوام ایکسپریس 2 گھنٹے 20 منٹ اور جعفر ایکسپریس جو کوئٹہ سے لاہور پہنچتی ہے اب 2 گھنٹے 10 منٹ کی تاخیر سے آ رہی ہے۔ گرین لائن ایکسپریس 1 گھنٹہ 10 منٹ کی تاخیر کا شکار ہے۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فہد۔ تو آپ کو بتائیں کہ باغوں کے شہر لاہور میں اسموگ کی شدت میں کمی آنے لگی ہے۔ شہر کو آج سے ایئر کوالٹی انڈیکس 198 ریکارڈ کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ AQI شاہراہ قائد اعظم پر 402 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 سے 4 روز تک بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سہیل کیسر سے۔ جی سہیل، بتائیے گا 3 سے 4 روز میں بھی بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں 3 سے 4 روز کو آپ تھوڑا سا مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ تقریباً 1 ہفتے تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ موسم اسی طرح خشک رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ صبح اور رات کے اوقات میں شدید دھند کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا کہ جیسے گزشتہ رات کافی شدید دھند دیکھنے میں آئی، جس کے باعث ایئرپورٹ پر بھی حد نگاہ جو ہے وہ کافی محدود ہو کر رہ گئی تھی، پھر کافی موٹر ویز بھی اور شاہراہیں بھی بند کرنا پڑی۔ یہ رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ چاہے وقتی طور پر ہی صحیح لیکن
لاہور میں اسموک کی شدت میں قدرے تھوڑی سی کمی ضرور آئی ہے کہ اب کافی دنوں کے بعد جو شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 200 کی سطح سے نیچے آیا ہے، ورنہ یہ 400 کی سطح سے بھی متعدد مرتبہ تجاوز کر گیا تھا اور 300 اور 400 کے درمیان عمومی طور پر یہ ریکارڈ کیا جاتا رہا، لیکن آج اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے اور یہ 198 شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس شاہراہ قائد اعظم پر رہا جو 402 ریکارڈ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شملہ پہاڑی اور گرد و نواح میں 370 ریکارڈ کیا گیا، اور اسی تناسب سے شہر کے دیگر علاقوں میں بھی یہی سلسلہ دیکھنے کو ملا۔ لیکن ماہرین کی طرف سے، طبی ماہرین کی طرف سے بار بار یہی تلقین کی جاتی ہے کہ جو ماسک ہے اس کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ دھند میں بھی ماسک کا استعمال کافی سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماسک کو تو شاید ہمیں اپنا ایک ضرور استعمال کرنا چاہیے تاکہ متعدد قباحتوں سے ہم بچ سکیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سہیل کیسر۔ نگران پنجاب حکومت نے تعطل کا شکار فلاحی منصوبہ مکمل کر لیا ہے۔ رائے گڑھ میں کم قیمت ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 245 گھر تیار کر لیے گئے ہیں۔ گھر 15 جنوری کو چھوٹے سرکاری ملازمین کو دیے جائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا تعمیر شدہ گھروں کا معائنہ، فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا گیا۔ تو آپ کو بتا رہی ہیں کہ نگران پنجاب حکومت نے تعطل کا شکار فلاحی منصوبہ مکمل کر لیا ہے۔ رائے گڑھ میں کم قیمت ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 245 گھر تیار ہو چکے ہیں اور گھر 15 جنوری کو چھوٹے سرکاری ملازمین کو دیے جائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا تعمیر شدہ گھروں کا معائنہ، فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا ہے۔ بات کریں گے لیاقت علی سے۔ بتائیے لیاقت۔ جی بالکل، نگران پنجاب حکومت نے تعطل کا شکار ایک اور فلاحی منصوبہ جو ہے اسے مکمل کر لیا۔ رائے گڑھ میں کم قیمت ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 245 گھر تیار کیے گئے ہیں۔ وزیر پنجاب محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر 245 گھر 15 جنوری کو چھوٹے سرکاری ملازمین کو دیے جائیں گے۔ محسن نقوی نے جو ہے اس حوالے سے رائے گڑھ پر پہنچے ہیں اور وہاں پر انہوں نے کم قیمت ہاؤسنگ پروجیکٹ پر تعمیر شدہ گھروں کا دورہ بھی کیا ہے، گھروں میں فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا اور سرکاری ملازمین کی رہائش کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی ہے، جبکہ سیوریج اور ڈرینیج کا کام بھی جلد مکمل کرنے کا کہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تعمیر شدہ گھروں کی الاٹمنٹ سے متعلق ضروری امور جو ہے فوری طے کیے جائیں۔ جی ٹھیک ہے لیاقت علی، بہت شکریہ آپ کا۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی کی کانووکیشن سے خطاب جاری ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ Particularly ask you, when a thing continually occurs, not on that account to find it natural. Let nothing be called natural. In an age of bloody confusion, ordered disorder, planned caprice, and dehumanized humanity, lest all things be held. برقی روڈ پر گورنر پنجاب ملیک الرحمان کا انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب جاری ہے۔ سامنے آتی ہیں، لیکن آج ہم کچھ مثبت خبروں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ مثبت خبر یہ ہے کہ آج کا دن بہت مبارک ہے، کیونکہ آج یہ سب گریجویٹنگ سٹوڈنٹس جو پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں آپ لوگ، آج آپ گریجویٹ کر کے نئی منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو ڈیئر گریجویٹس، we know that for any country in the world, it is the human resource which is the most precious asset. اس ملک کے اندر اگر سونے کے ذخائر ہوں، تانبے کے ہوں، پیتل کے ہوں، تیل سے مالا مال ہو، کچھ بھی کام نہیں آئے گا جب تک کہ آپ لوگ اس ملک کے نوجوان یا افرادی قوت جو کہ اصل جیمز ہیں وہ نہ ہوں۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جیم اس وقت تک ویلیویبل نہیں ہوتا جب تک اس کو صحیح طریقے سے تراشا نہ جائے، اس کو پالش نہ کیا جائے۔ And these universities and schools and educational institutions, they have been set up by the governments, by the people, by the institutions have been created to do that noble task, to polish you, to give you the right knowledge, to give you the right skills. آپ کے اندر نہ صرف علم اور
सही फ़नी सलाहियतें पैदा करना, बल्कि जिस तरह आपके वाइस चांसलर फरमा रहे थे कि इल्म वो है जो किरदार से छलके, तो जब तक आपके अंदर राइट एटीट्यूड्स और राइट करैक्टर नहीं आएगा, आप सही चमकते हुए हीरा नहीं बन सकेंगे। आप बहुत कीमती हैं और आपने अपने किरदार से, अपने इल्म से, अपनी शख्सियत से ना सिर्फ अपने आप को और ना सिर्फ अपनी फैमिली को, ना सिर्फ अपने घराने को, बल्कि अपनी विसिनिटी को। तो मौसम सरमा में भी बिजली का शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया है। पानी की कमी के बायस बिजली की पैदावार में कमी का सामना है और धुंध के बायस तरसीली निज़ाम भी मुतासिर है। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग होने लगी। मैदानी इलाकों में धुंध के बायस तकनीकी खराबी की भरमार, पानी की कमी के बायस हाइडल बिजली की पैदावार में कमी हुई। महंगी बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स भी बंद हैं। जराये के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की तलब 11,500 मेगावाट से जायद है। बिजली का शॉर्टफॉल 3,000 मेगावाट से तजावुज कर गया। लेस्को की बिजली की तलब 2200 मेगावाट से जायद, जबकि सप्लाई 1800 मेगावाट है। लेस्को को 400 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। शहर में 4 से 5 घंटे और देही इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। शहर में ऑपरेशन के बाद फिर से तजावुजात पर डीसी लाहौर बरहम हो गई। MCL के 5 जोनल रेगुलेशन अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 रोज में जवाब जमा न करवाने पर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। डीसी लाहौर का कहना है जो अफसर काम करना चाहता है वेलकम, जो नहीं करना चाहता घर जाए। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। बताइए इमरान। आज बिल्कुल शहर में चूंकि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वजह से कल इजलास हुआ, तजावुजात खत्म करवाने के बाद फिर से वापस क्यों आए। DC व एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफिया हैदर गरम हो गई। जो अफसर काम करना चाहता है उसको वेलकम कहेंगे, जो नहीं करना चाहता वो घर जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर MCL ने 5 जोनल रेगुलेशन अफसरान को शोकस नोटिस जारी कर दिए हैं। प्राइस में गफलत करने और तजावुजात के बाद जवाब न जमा करवाने पर शोकस नोटिस जारी किए जाएंगे। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर इकबाल फरीद की ने ये नोटिस जारी करने के अहकाम जारी किए हैं। जोनल ऑफिसर रेगुलेशन समनाबाद जोन राना अशरफ को शोकस नोटिस जारी किया गया है। अजीज भट्टी जोन, शफाक अहमद रावी जोन, ताहिर अली टाटागंज जोन, तनवीर बलोच और इकबाल जोन से लाकत मलिक को शोकस नोटिस जारी किए गए हैं। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर ने सरप्राइज दौरों और चेकिंग के दौरान तलका इलाकों में फिर से तजावुजात वापस पाई गई। उनका ये कहना है कि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर शहर भर की किसी सूरत तजावुजात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है कि अफसरान बेकार में हुकूमत के साथ मजाक मत करें और अपने काम में सीरियस हों और बाकायदा तौर पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जारी की जाएगी और रिपोर्ट में बाकायदा दोबारा से फॉलोअप में भी देखा जाएगा कि तजावुजात दोबारा से लगे या नहीं लगे। अगर लगे होंगे तो जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। स्क्रूटनी का मामला है और आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर्स की डिपार्टिंग में गहमा गहमी है। आज जमात इस्लामी और TLP की खवातीन के कागजात की स्क्रूटनी होगी, तो वहीं गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज भी मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी के हवाले से जांच पड़ताल का अमल जारी है। आज जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं खवातीन, उनके कागजात नामजदगी के हवाले से जांच पड़ताल हो रही है। कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन में जांच पड़ताल का अमल जारी है, जबकि इसके साथ साथ जो जनरल नशिस्तें हैं वहाँ पर भी जांच पड़ताल हो रही है। लाहौर के हल्का NA 121 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अजहर सदीक एडवोकेट के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया है। किसी उम्मीदवार ने अजहर सदीक एडवोकेट के कागजात नामजदगी पर एतराज़ नहीं उठाया, जबकि
बानी PTI के कागजात नामजदगी जो कि हल्का NA 122 है, उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल दोपहर 1:30 बजे के करीब रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू शुरू होगा और उनकी जो लीगल टीम है वो रिटर्निंग अफसर के सामने पेश होगी। इसके साथ साथ जो दीगर कौमी और सूबाई असम्बली के हलके हैं वहाँ पर भी उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। तो इस मरहले के बाद 30 दिसंबर को जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हुई उनसे मुतल्लिक फहरिस्तें अवेज़ा की जाएंगी और उनके कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने से मुतल्लिक भी फहरिस्तें अवेज़ा होंगी। और इस हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के एपलेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूबरू अपीलें दायर की जा सकेंगी। मोहम्मद अशफाक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन ड्यूटीज न करने वाले असातिज़ा को जुर्माना और शोकॉज नोटिस। महकमा स्कूल एजुकेशन के असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई। इलेक्शन ट्रेनिंग में शामिल न होने वालों की 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन ड्यूटीज़ ना करने वाले उस्तातिज़ा को जुर्माना और शोकॉज नोटिस भी होगा, जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन की उस्तातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और इलेक्शन ट्रेनिंग में शामिल न होने वालों की 1 दिन की तनख्वाह भी काटी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन ड्यूटीज़ ना करने वाले उस्तातिज़ा को जुर्माना और शोकॉज नोटिस भी होगा, जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन की उस्तातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई होगी। बात करेंगे आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ, किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है? जी, जो कार्रवाइयाँ फाइनल की गई हैं इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि जिस दिन टीचर जो है वो ड्यूटी से गैर हाजिर होंगे उस दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। उसके साथ साथ अभी से शोकॉज जो है वो जारी करना शुरू कर दिए गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया गया क्योंकि बहुत सारे ज़िला में असातिज़ा की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा था। इस वक्त असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर की तरबियत का अमल शुरू हो चुका है जो अगले महीने तक जारी रहेगा। 2 मरहलों में ये ट्रेनिंग जारी रहनी है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम असातिज़ा को पाबंद किया था कि बगैर किसी वजह के वो जिस ट्रेनिंग से गैर हाजिर नहीं हो सकते। बहुत सारे ज़िला में असातिज़ा जो है वो गैर हाजिर थे, तो अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया है। जिन ज़िला से टीचर ट्रेनिंग से गायब हैं उनकी उस दिन की तनख्वाह भी काटी जाएगी और उसके साथ साथ उनको शोकॉज भी जारी किए जाएंगे। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के साबिक MNA करामत खोकर की तस्दीक और तायद कुनंदा को हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी ने दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको खबर दे रहे हैं, अहम खबर है। तहरीक इंसाफ के साबिक MNA करामत खोकर के तस्दीक और तायद कुनंदा को हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी ने दरख्वास्त पर समाअत की है। तहरीक इंसाफ के साबिक MNA करामत खोकर के तस्दीक और तायद कुनंदा को हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद रंधावा का PIC सेंटर का दौरा। PIC की ग्राउंड फ्लोर इमरजेंसी को 3 से 4 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत है। कमिश्नर लाहौर ने ई-रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का भी मुआयना किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, PIC रिवैम्पिंग का मामला है और इसके साथ साथ ई-रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का भी दौरा कर रहे हैं कमिश्नर लाहौर। कमिश्नर लाहौर ने PIC ग्राउंड फ्लोर इमरजेंसी को 3 या 4 दिन में मुकम्मल करने की हदायत कर दी गई है और इस वाले से कमिश्नर लाहौर ने PIC कलेक्शन और डायग्नोस्टिक सेंटर का भी दौरा किया। इस जनरेटर की मुंतकिली के दौरान तबी सर्विसेज में कोई खलल नहीं आना चाहिए। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि जनरेटर मुंतकिली स्ट्रक्चर डिज़ाइन के मुताबिक होगी, बैकअप जनरेटर को पार करके मुंतकिली होगी। इस वाले से कमिश्नर लाहौर ने मेहमान खाने का भी दौरा किया, तमीर का जायजा लिया। मरीजों की जो है अटेंडेंस के लिए सराय की तमीर की तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर का ये भी कहना है कि निगरान वज़ीर पंजाब की हिदायत के तहत अस्पताल की रिवैम्पिंग का काम मुकम्मल किया जा रहा है। PIC एमरजेंसी के गिर्द एम्बुलेंसेज व गाड़ियों को रवा रास्ता फराहम किया जा रहा है और इस वाले से कमिश्नर लाहौर ने ई-रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का भी दौरा किया, काम में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। ई-रजिस्ट्री का बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो गया है जबकि डेडलाइन के मुताबिक कौमी सहूलियात के लिए फाल होगा। रजिस्ट्री व रेवेन्यू अमूर के लिए शहरियों को बावकार सहूलियात कारपोरेट सेक्टर तर्ज पर एक ही छत के तले मुयसर होंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका इमरान। अंधेर नगरी चौपर राज लाहौर की सबसे पुरानी स्कीम गुलबर्ग की गैर कानूनी रिक्लासिफिकेशन का इंकशाफ हुआ है। LTA ने कानूनी तौर पर 2009 में रिहायशी प्लॉटों की रिक्लासिफिकेशन की। 14 सालों के दौरान ट्रेंड तब्दील होने से मालिकान ने अज खुद प्लॉटों की रिक्लासीफाई कर लिया।
गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों से स्मोक में इजाफा होने लगा। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। बताइए ज़ैन। ये लाहौर की सबसे पुरानी स्कीम गुलबर्ग की गैर कानूनी रीक्लासिफिकेशन का इंकशाफ हुआ है। एलडीए ने कानूनी तौर पर 2009 में रिहायशी प्लॉटों की रीक्लासिफिकेशन की, लेकिन 14 सालों के दौरान ट्रेंड तब्दील होने से मालकान ने अज खुद प्लॉटों को रीक्लासिफाई कर लिया। रिहायशी प्लॉटों पर लैंड यूज रूल्स के मुतजाद रेस्टोरेंट और होटल्स तमीर किए गए और ये गुलबर्ग में लैंड यूज की खिलाफ वर्जी की वजह से सूती और फिजाई आलूदगी इस वक्त बढ़ रही है। इसके अलावा ये अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से देखा जाए तो माहौलियाती आलूदगी का शिकार हो रहा है। तहकीकात में ये चीज सामने आई कि लैंड यूज के मुतजाद गुज़िश्ता 2 बरसों में 100 रेस्टोरेंट यहाँ पर तमीर हुए, जबकि एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग से जो ऑफिस बिल्डिंग के नक्शे पास करवाए गए वहाँ पर होटल्स तमीर कर लिए गए। यही वजह है कि गुलबर्ग में गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां करने से स्मोक में भी इजाफा हुआ। इसके अलावा माजी में गुलबर्ग का सीवरेज सिस्टम बेहतर बनाने के लिए प्लान भी दिया गया, लेकिन इस अमल आमद किए बगैर गुलबर्ग में 90% जो प्लॉट हैं इस वक्त उनको कमर्शियल कर दिया गया है और जेर जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के बिना स्कीम पर मजीद नफूस का बोझ डालकर मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी भी की गई है। इस सिलसिले में वासा का एक लेटर भी सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि गुलबर्ग की सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त मौजूदा हालात में नाकाफी है। गुलबर्ग की रीक्लासिफिकेशन और गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों में इजाफे की वजह से स्कीम की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग ने सार्फिन को परेशान कर दिया है। लॉसेस और बिजली चोरी को छुपाने के लिए लेस्को के मुतअद्दिद सब डिवीजन्स में ओवर बिलिंग की भरमार है। बैच 24 ज़रे ट्यूबवेल्स और कमर्शियल कनेक्शंस पर ओवर बिलिंग जारी है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल कनेक्शंस पर हज़ारों यूनिट्स इजाफी चार्ज किए जाने लगे। इसी पर बात करेंगे फ़ाहद अमीन से। बताइए फ़ाहद। जी बिल्कुल, नेपरा नोटिसिंग के बावजूद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में जो है वो ओवर बिलिंग का सिलसिला जारी है, जबकि सार्फिन को एडवांस बिलिंग के साथ साथ जब ओवर बिलिंग की जा रही है तो सार्फिन को हजारों यूनिट जो है वो इजाफी चार्ज किए जा रहे हैं। बैच 24 ज़री ट्यूबवेल्स और कमर्शियल कनेक्शन पर जो है वो लेस्को की मुतअद्दिद सब डिवीजन में जो है वो हजारों यूनिट एक्स्ट्रा जो है वो सार्फिन को डाले जा रहे हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल कनेक्शन पर जो है वो ज्यादा यूनिट चार्ज होने के बायस जो है वो ओवर बिलिंग के साथ साथ इनको जो है वो टैक्सेस भी जो है वो इजाफी जमा करवाने पड़ रहे हैं। ज़राए का ये कहना है कि रिकवरी टारगेट पूरा करने के लिए 8 से 10 रोज तक जो है वो एडवांस बिलिंग की जा रही है और लेस्को फील्ड अफसरान की जानिब से तमाम बैचेस की रीडिंग जो है वो 5 से 10 रोज तक जो है वो ताखीर से ली जा रही है। अभी तक जो है वो मुतअद्दिद बैचेस की रीडिंग जो है जिनका डेट गुजर चुकी है उनकी भी जो है वो अभी तक नहीं ली जा सकी और रीडिंग ताखीर से लेने की वजह से सार्फिन को रेट ज्यादा और इजाफी टैक्सेस भी जो है वो अदा करना पड़ते हैं। सार्फिन के बिलों में जो है वो हजारों यूनिट जो है वो जब इजाफी डाले जाते हैं तो इनके जो है वो टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं और सार्फिन को कई गुना ज्यादा बिल जो है वो जमा करवाने पड़ते हैं। नेपरा की जानिब से इस हवाले से जो है वो सख्त नोटिस लिया गया था और लेस्को हुकाम को इस हवाले से जो है वो नोटिस भी जारी किए गए थे कि ओवर बिलिंग जो है वो बहुत ज्यादा की जा रही है, मगर इसके बावजूद जो है वो ओवर बिलिंग का सिलसिला ताहाल लेस्को में नहीं रुक सका। जी ठीक है फ़ाहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई से मुताल्लिक़ खबर यह है कि सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। लहसुन 820, अदरक 730, प्याज 250 और टमाटर 130 रुपये किलो में बिकने लगे हैं। अनार बदाना 950, अंगूर 680, सेब 400 और अमरूद 200 रुपये किलो में दस्तियाब हैं। अंडों के रेट में होश रुपये इजाफा हुआ है। मार्केट में अंडे 450 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। मज़ीद तफसील आजा लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज के नरखनामों के हवाले से बात की जाए तो 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया जो सरकारी रिलीज़ जारी किए गए हैं। सब्ज़ मंडी इंतज़ामिया की जानिब से प्याज गुज़िश्ता रोज़ भी महंगा किया गया था, आज मज़ीद 5 रुपये महंगा करके 190 रुपये सरकारी रिलीज़ में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का म्यारी प्याज जो है वो 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च 10 रुपये महंगी करके 110 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि बैगन 12 रुपये महंगे करके 60 रुपये, करेले 10 रुपये इजाफे के बाद 180 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, साग 1 रुपये इजाफे के बाद 46 रुपये, शलजम 1 रुपये महंगा करके 46 रुपये मुकर्रर किया गया, अरवी 5 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये। मजमूई तौर पर 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, लेकिन ये सरकारी रिलीज़ की कीमतें
मंडियों में और बाज़ारों में रेट जो है वो अलग वसूल किए जा रहे हैं। पोल्ट्री मसनूआत में अंडों की कीमतों में इजाफा जो है वो नहीं कंट्रोल किया जा सका है, रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। आज भी मज़ीद 2 रुपये बढ़ाकर 366 रुपये फ़ी दर्जन कीमत सरकारी रेलिस में है, लेकिन मार्केट में अंडा जो है वो 38 से 40 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है और 450 रुपये फ़ी दर्जन तक शहरियों से कीमतें वसूल की जा रही हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी के लिए आए, इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या क्या ख़रीदा है और कीमतों के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी, कीमतें तो इस टाइम बहुत ज़्यादा हैं। यकीन करें कि सुबह से फिर रहे हैं कि कहीं से कोई रेट कम मिल जाए, लेकिन कहीं भी रेट कम नहीं है। सब्ज़ी जो है, इंसान आता है मंडी के, चलें कोई सस्ती चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। लोकल दुकानदार तो बहुत महंगी दे रहे हैं, लेकिन ये यहाँ आके देखें, यहाँ भी रेट बहुत ज़्यादा है। प्याज है, उसको भी आग लगी है, दूसरी सब्ज़ी है, घिया है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है कि हर चीज़। सर्दी बढ़ गई अंडे? हाँ जी, अंडे तो देखिए, अंडे और पोल्ट्री जो है, मुर्गी का जो गोश्त है, वो तो आसमानों से बातें कर रहे हैं। अब गरीब आदमी क्या खाएगा? मुझे ये बताएं कि एक सब्ज़ी तो है जिसको खानी होती है, या दालें हैं, दालों के रेट भी ज़्यादा हैं, अंडों के रेट भी ज़्यादा हैं, क्या खाना है? रोज़गार तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है लोगों का, और अब जो महंगाई है वो तो आसमानों से बातें कर रही है। तो अब दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क में कोई रहम करे, तो कुछ महंगाई कम हो तो गरीब आदमी जो सुकून का सांस ले। हाँ जी, बिल्कुल, आपने जो है वो सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ रही है। पोल्ट्री मसनूआत, सब्जियां, फल, दालें, कुछ भी जो है वो सस्ता नहीं रहा। अशिया खुरनोश की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर 37 पैसे सस्ता इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी पर बात करेंगे साहिद आबिद से। बताइए साहिद। बड़ी हफ्ता है जिसमें डॉलर की कदर में रोजाना की बुनियाद पर कमी हो रही है और करेंसी मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है, जिससे वजह से रुपए की कदर को इस्तेहकाम मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज इस वक्त भी यही सूरत देखी जा रही है और इंटरबैंक डॉलर रेट 282 रुपये तक आ गया है, जिसमें मार्केट ज़राए के मुताबिक मजीद कमी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि ओपन मार्केट में भी यही ट्रेंड नजर आ रहा है और ओपन मार्केट में इस डॉलर तकरीबन 284 रुपये तक दस्तयाब है। मार्केट ज़राए के मुताबिक इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम और दरामदाती पॉलिसी के हवाले से जो अपनाई गई है, उसकी वजह से मार्केट में डॉलर की तलब कम हो रही है और रुपए की कदर को कुछ इस्तेहकाम मिल रहा है और आइंदा चंद रोज यही सूरत रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं कि सीनियर लीगी रहनुमा मियां मोहम्मद नोमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात हल्का NA 128 के इलेक्शन मुहिम और दीगर मामलात पर मुशावरत। शहबाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को मुतहरिक करने और भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने की हिदायत की गई है। मुलाकात में लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। मुलाकात का अहवाल बताएंगे फहद अमीन। बताइए फहद। आज बिल्कुल, आज सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नोमान ने जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात किया है। मुलाकात में हल्का NA 128 की इलेक्शन मुहिम के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की गई, जबकि दीगर मामलात पर भी जो है वो मुशावरत की गई। शहबाज शरीफ की जानिब से मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को मुतहरिक करने और NA 128 में भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने की हिदायत की गई है। हाफिज नोमान ने जो है वो सदर मुस्लिम लीग नून को NA 128 में इलेक्शन मुहिम के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी। मुलाकात में लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ भी जो है वो मौजूद थे। जी ठीक है फहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका।